ہمارے درمیان موجود ہیں انسانی حقوق کمیشن کے حسین نقی۔ حسین نقی صاحب نے اپنی زندگی انسانی حقوق کے دفاع کے لیے اور فروغ کے لیے اور اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اسٹوڈنٹ رائٹس کے لیے اور پولیٹیکل ایکٹیویشن کے لیے صرف کی ہے۔ میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان کا ایک بہت اچھا سا ان کو خوش آمدید کہیں۔ حسین نقی صاحب ہمیں آج کے اس موضوع کو ہمارے سامنے پیش کریں گے، ہمیں بتائیں گے کہ مقامی خبر، شہری حقوق اور میڈیا کے درمیان کیا تعلق ہے اور آج کی کانفرنس کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے، کن موضوعات پہ گفتگو ہونی چاہیے اور معاشرے میں ان تینوں عوامل کو آپس میں جوڑ کر جو اثرات پیدا ہوتے ہیں وہ کیا ہے۔ حسین نقی۔ بہت شکریہ یہاں انوائٹ کرنے کا، بلانے کا، اور مجھے اردو یونیورسٹی یاد آئی، یعنی اردو یونیورسٹی اور ساتھ ساتھ کراچی یونیورسٹی دونوں ان عمارتوں میں قائم ہوئی جن کے اوپر قبضہ کیا طالب علموں نے۔ یہ قبضہ تو چونکہ میں 62 میں بہت سارے لوگ میرا خیال شاید ہی اس میں چند لوگ ہوں جو اس وقت پیدا ہو چکے ہوں گے۔ سن 62-63 میں کراچی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کا صدر تھا۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین اور اسٹوڈنٹس یونین کا خاتمہ یہاں باوجوہ کر دیا گیا اس واسطے کیونکہ پاکستان کو اکٹھا رکھنا مقصود نہیں تھا۔ تو اس ابتدا کے ساتھ میں نے کچھ لکھ لیا تھا اس کے بارے میں، کیونکہ اب ظاہر ہے میں یعنی 90 سال میں 1 سال کم رہ گیا ہے میرا، تو اس واسطے میں بھول بھی جاتا ہوں چیزیں، لیکن پاسٹ نہیں بھولا ہوں میں پاکستان کا۔ اور اب بہت مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ پہلے تو سیاسی جلسوں میں مائک ہمیشہ خراب ہو جاتے، تو یہاں جو بھی ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے یہ ان کے لیے، اگر یہ انہی کے لوگ ہیں تو بہت مبارک ہے ہو، اگر آپ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کنڈکٹ کیا۔ اور جہاں تک اس کا اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی یہاں پر، میں تو شروع سے آ گیا تھا کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وقت پہ پہنچوں، حالانکہ میں لیٹ ہو رہا تھا لیکن پتہ چلا کہ آپ ہم سے بھی زیادہ لیٹ ہوں گے، تو بہرحال وہ میں نے سب دیکھا، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال میں یہ یونیورسٹی مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ایڈوانسڈ ہے۔ اور اس واسطے بھی مجھے خوشی ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرنے میں یہاں ایک اخبار نکلا تھا بالکل ہی شروع میں، اس کا اب دیکھیے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا ہے، جس کا میں بیورو ریپریزنٹیٹو تھا، اس نے سب سے پہلے شروع کیا تھا، اور پھر جب یہ نیوز کا مجھے ایڈیٹرشپ آفر کی لاہور میں، تو پھر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو پہلے تو سب آپ اس کو کھولیں اس کے لیے، کیونکہ 4000 میں سے 400 درخواستیں میں نے 4000 میں سے 400 سے سلیکٹ کی تھیں، اور اس میں سے 40 فائنلی ہم نے لیے وہاں لاہور کے لیے۔ اور تو اس وقت اس ٹیکنالوجی کا جب یعنی پیجز بند کے اور آ سکتے تھے، اور مطلب وہ ہم اخبار کو 3:30 بجے صبح بند کرتے تھے، کلوز کرتے تھے۔ اس سے پہلے ہمارا ٹریڈیشن تھا کہ یہاں پہ 2 بجے، زیادہ سے زیادہ 2 بجے بند کریں تاکہ اخبار مارکیٹ میں پہنچ جائے۔ بہرحال اس شکریہ کے ساتھ یہ میں مقامی خبر، شہری حقوق اور میڈیا کراچی
ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की जानिब से 7वीं बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, क्योंकि ये उर्दू में सब लिखा था और उर्दू यूनिवर्सिटी का था। मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि उर्दू में सारी बातचीत होगी, लेकिन बहरहाल यहाँ ज़ाहिर है कि जो हजरात अभी जिन्होंने इस वाइस चांसलर साहिबान ने यहाँ तकरीर की, उन्होंने ये मुनासिब समझा क्योंकि शायद इसको वो इंटरनेशनली पब्लिश भी कराना चाहते हैं, तो उसकी वजह से शायद ये कार्रवाई हुई। कराची में इस कॉन्फ्रेंस का 7वीं बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इसलिए बहुत मुनासिब है कि कराची पाकिस्तान की तमाम वफाकी और ज़ेर तहवील इकाइयों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों का मस्कन और उनकी माशी, समाजी, सकाफ़ती ज़िंदगी का मरकज़ है। फिर ये शहर चूँकि मुत्तहदा पाकिस्तान का अव्वलीन दारुल खिलाफ़ा रहा, लिहाजी इसकी सियासी सूरत हाल अब भी सारे मुल्क को मुतासर करती है। इस कॉन्फ्रेंस की दोनों नशिस्तों के उन्वानात, जिनके बारे में मुल्क के मोतबर सहाफ़ी जिनकी पेशा वाराना सलाहियतों का एतराफ़ बैनुल अक़वामी इदारों ने भी किया है, इजहार ख़याल करेंगे, जो इस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के लिए यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की जानिब से एक नहायत मुफीद और कारआमद तोहफ़ा है। फिर इन नशिस्तों की सदारत सहाफ़त के पेशे से मुताल्लिक़ दो इंतहाई मुखलिस और आमिल सहाफ़ी जनाब मज़हर अब्बास और प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ़ अहमद ख़ान कर रहे हैं। पहली नशिस्त के उन्वानात में मीडिया और शहरियों के हुकूक़, मकामी ख़बरें और सहाफ़ियों के लिए चैलेंजेस, डिजिटल स्टोर और सहाफ़ती अखलाक़ियात, मकामी ख़बरें और मालूमात तक रसाई का हक़, और आखिरी मौजू है मकामी ख़बरें और मौसर बिज़नेस मॉडल। चूँकि सभी कुछ कमर्शलाइज हो रहा है, तो उसमें मीडिया भी कमर्शलाइज ही होगा, है भी इस वक्त कमर्शलाइज है। ख़बरों की तरसील के हवाले से तो जो इस वक्त 40 अगर आप तो मेरा ख्याल है ऐसे चैनल्स हैं जो ख़बरें भी नशर करते हैं, ख़बरें कम और तकारीर और प्रेस रिलीज़ेस का ज़्यादा यानी वो होता है। तो दूसरे सेशन का उन्वान सोशल मीडिया, एहतसाब और अवाम मुतय्यन किया गया है। इसके तहत ज़ैली उन्वानात हैं मकामी ख़बरें और सोशल मीडिया और मकामी तहरीकें, ख़बरों और ख़बरों के इतारों का मुस्तक़बिल, और कनाडा में बैनुल अक़वामी ये इस तरीक़े से हो गई कॉन्फ्रेंस कि कनाडा में कम्युनिटी सहाफ़त जो है उसके अकाबरीन इसमें मौज़ूआत पर इज़हार ख़याल करेंगे। जो हज़रात इसमें इज़हार ख़याल करने वाले हैं, मैंने मज़हर आरिफ को, अगर वो हैं तो पहचाना नहीं है, हैं मज़हर आरिफ? अच्छा तो ज़ाहिर है अब देखे हुए भी 20 बरस हो गए हैं कम अज़ कम उसको। तो उनमें जनाब मज़हर आरिफ, जनाब अशरफ ख़ान, वो तो यहाँ नज़र आए, मोहतरमा अंबर खैरी जो न सिर्फ सहाफ़त करती हैं बल्कि किताबें पढ़ती भी हैं और किताबों के ऊपर बहुत ही सैर हासिल तबसरा भी करती हैं। अभी पिछले हफ्ते के डॉन में भी उनका एक शामिल हुआ। फिर असलम अली साहब के साहबजादे हैं हमारे, और फिर बिलाल हसन साहब हैं यहाँ जो बैनुल अक़वामी कनाडा से तशरीफ़ लाएँ।
नशिस्त दोयम में इजहार ख्याल करने वालों में प्रोफेसर डॉक्टर सीमी नगमाना ताहिर। बहुत पहले वो मेरे मुलाकात उनसे उस वक्त हुई थी, मैं तो कराची जा चुका था जब वो मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट के तौर पे थी, तो बलूचिस्तान में मुलाकात हुई। फिर प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ुल्लाह साहब तशरीफ़ लाएँ, जनाब रेहात सोहेल साहब और जनाब मोहसिन अब्बास साहब शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम में मेहमान ख़ुसूसी से होगा, उनका अभी इसमें नाम शामिल नहीं है, मुझे इल्म भी नहीं है कि कौन सा मेहमान ख़ुसूसी हैं। और इजहार तशक्कुर का फ़र्ज़ जो है वफाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की जानिब से किया जाएगा। एक आखिरी बात मैं कर लूँ और उससे थोड़ा सा आप लोगों को कुछ सोचने में भी मदद मिलेगी कि अगर आज मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहता किसी और मीडिया के ऊपर या किसी भी उसके मास्टर्स डिग्री के लिए, तो मेरा तो बिल्कुल ही इम्कान नहीं था दाखिल होने का, क्योंकि मैं 55 रुपए पे 5 पीरियड में ग्रामर और कंपोजिशन पढ़ाता था एक स्कूल में, और 25 रुपए पे एक ट्यूशन करता था, उससे हमारा गुजारा होता था, और 14 रुपए यूनिवर्सिटी की तनख्वाह होती थी। तो बहरहाल मुझे कोई इससे कोई अफसोस नहीं होता कि यहाँ जो लोग पढ़ रहे हैं वो सब, तो उनका ताल्लुक़ या तो खुशहाल घरानों से है या उन घरानों से है जिनके बच्चों ने बहुत मेहनत करके और कोई पोजीशन हासिल की है और उनकी यहाँ फ़ीस माफ़ हो गई है और उनके लिए शायद कुछ वजीफ़ों का भी बंदोबस्त हो गया हो। तो बहुत शुक्रिया आप सब हज़रात का, और मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है ये आप लोगों को बहुत सारे जहत में मामलात को समझने का मौका भी देगी। ये बहुत ही अहम वक्त पे हो रही है इस वक्त। मुझे तो ये शरफ़ हासिल है, शरफ़ ही कहूँगा मैं, कि मैं पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत और फ़ौजी हुकूमत दोनों के ज़माने में सहाफ़त करने या स्टूडेंट लीडरी करने के सिलसिले में क़िला लाहौर में क़ैद रहा हूँ और 5-6 बार और भी क़ैद वैद रहा। तो अब वो वक्त भी और था, और मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ कोई इससे कोई इंस्पिरेशन इस हवाले से ले, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसमें इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इसके मौज़ूआत के हवाले से बहुत मुफीद है, इस वास्ते कि हमेशा मैं तो सन 62-63 से देख रहा हूँ, जब पहली बार ये आया था प्रेस एंड पब्लिकेशंस ऑर्डिनेंस, और उसमें ये कहा गया था कि अगर आप एक अच्छी शर्ट पहनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो अगर आप अच्छी तालीम चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा पैसे देना पड़ेंगे। तो वो उस ख्वाब की ताबीर हो गई है। एक तो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, एक ये ख्वाब है, और इसकी भी ताबीर हो गई। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, और मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त क़वानीन आए हैं, अगर ये नाफिज हुए और इनके मुताबिक अमल किया गया तो बाकी पाकिस्तान भी इस ख़तरे से दो चार है कि ये फिर तकसीम हो जाए। पहले के वक्त में तो मैं ढाका में था जब शेख मुजीब और भुट्टो साहब की बातचीत हुई है, और मैं एक अखबार ही को रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ से। बहुत शुक्रिया आप सब। बहुत शुक्रिया हुसैन नकी साहब, और बहुत खूबसूरत बात रखी, और आप अंदाज़ा लगा लें कि अब का दौर और तब का दौर फ़र्क कुछ नहीं है। इजहार करने का तरीक़ेकार तब भी वही था और आज थोड़ा सा लाउड हो गया है।